Assalamu alaikum. I'm your science teacher for class 7. Today our topic is blood vessels. Blood moves around in the body through a system of tubes that are called blood vessels. The vessels taking blood away from the heart to various parts of the body are called arteries. These are arteries. And those bringing blood to the heart from different parts of the body known as veins. These are veins. They bring blood back to the heart. Arteries are elastic, thick-walled and deeply seated in the body, while veins are thin-walled and have valves to prevent the backflow of blood. Always remember, veins have valves, but arteries don't have valves. The arteries and veins are connected to each other by very fine vessels called capillaries. These are capillaries. These are the connections between arteries and veins. तो हमने इसमें पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल जो हैं वो ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक और दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती हैं, जबकि वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को बॉडी के दूसरे पार्ट से हार्ट में वापस लेके आती हैं. और कैपिलरीज इन दोनों के बीच के कनेक्शंस जो ट्यूब्स होती हैं जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं. Now blood. Blood consists of two components, that is plasma and corpuscles. What is plasma? Plasma is a liquid part of blood. It is yellowish in color and makes about 55% of total blood. Water forms about 92% of plasma. Major component of plasma is what? Water. 92% of plasma consists of water. The remaining 8% consists of various dissolved materials. Plasma carries carbon dioxide, proteins, glucose, urea, minerals and hormones. It helps in clotting of blood in wounds. प्लाज्मा का क्या काम होता है? प्लाज्मा का काम होता है क्लॉटिंग करना. क्लॉटिंग क्या है? व्हाट इज क्लॉटिंग? क्लॉटिंग इज अ प्रोसेस इन विच स्टॉप्स ब्लीडिंग. ठीक है, क्लॉटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टॉप्स ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग को रोकता है. जख्म होता है, कोई वुंड होता है, कहीं चोट लगती है तो वो क्लॉटिंग की मदद से रुकती है. और वो कौन करवाता है? प्लाज्मा करवाता है. Second part of blood is corpuscles. Corpuscles are the cells suspended in the plasma. There are three types of cells: red blood cells, white blood cells and platelets. Red blood cells help in transporting oxygen to different cells in the body. WBCs protect the body against infection and platelets assist in clotting of blood. Functions of blood, as we discussed earlier, what are the functions of blood? It transports oxygen, food materials and hormones to all parts of the body. It protects the body against diseases and other infections that are the function of WBCs. It helps to maintain a constant body temperature. It maintains the water balance of the body. It carries the waste products to the excretory organs for removal. ये सारे functions हैं blood के. जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 blood के corpuscles होते हैं, WBCs, RBCs और platelets. RBCs का काम होता है ऑक्सीजन पहुँचाना डिफरेंट पार्ट्स में. WBCs का काम होता है इन्फेक्शंस में हेल्प करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना. और इसी तरह से प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करना. तो ये सारे आपके ब्लड के फंक्शंस में शामिल होता है. देन वी स्टडी मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द हार्ट. ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू 2 large veins called the superior and inferior vena cava. These veins bring blood from upper and lower portions of the body except lungs. This blood is dark red in color because it consists of a lot of carbon dioxide and a very little oxygen. From right atrium the blood is passed into the right ventricle. From here it is pumped through pulmonary artery into the lungs, where the blood gives up carbon dioxide and oxygen is taken up. Here is the diagram of heart. It is shown that superior vena cava and inferior vena cava are 2 large veins that enters from right side of the heart to the right atrium. Here the blood enters through the right atrium to right ventricle, and here the blood goes from the pulmonary artery to the lungs. Then in the lungs gas exchange process occurs, and from the pulmonary veins blood comes through the pulmonary veins to the left atrium and then to the left ventricle, and from the left ventricle blood is pumped through the aorta to all parts of the body.
The oxygenated blood, which is bright red in color, is sent through 4 pulmonary veins to the left atrium of the heart. This blood passes into the left ventricle, which has a very thick wall. It is from here that the oxygenated blood is pumped into the aorta, which carries it to all parts of the body through arteries and capillaries. अब इसमें हम इस डायग्राम से पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका वो लंग्स के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से आएगा वो लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जो होगा वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये आउटा के थ्रू होके पूरी बॉडी को सर्कुलेट होगा। फिर वहाँ से जो है जो डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा और वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे वेन्स के थ्रू आएगा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर आएगा राइट वेंट्रिकल में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और आर्टरीज लाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। अब हमेशा ये याद रखना है आपको कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी आर्टरीज़ में हमेशा ऑक्सीजनेटेड होगा। और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो वाहिद वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बाकी सारी वेन्स जो है आपकी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हर लंग से, बोथ लंग से 1 होती है और पल्मोनरी वेन्स जो है वो 2 इन नंबर होती हैं फॉर ईच लंग। देयर आर टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स एंड देयर आर टोटल 2 पल्मोनरी आर्टरीज। Now we study pulse. What is pulse? The pulse is an impact that can be felt over an artery that lies near the surface of the skin. The impulse is due to alternate expansion and contraction of heart. The pulse is most easily felt where the artery approaches the surface of the body, example inner side of the wrist. पल्स क्या होती है? पल्स बेसिकली आपका इम्पैक्ट होता है। पल्स आपकी जो है वो होता है इम्पैक्ट आपकी हार्ट की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। जब आपका हार्ट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने से जो इम्पल्स आएगी वो आपकी यहाँ पे फेल्ट होती है उन पार्ट्स ऑफ बॉडी पे जो स्किन से बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आर्टरीज स्किन से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दी है यहाँ इनर साइड ऑफ रिस्ट की। इनर साइड ऑफ रिस्ट वो पार्ट है आपका जहाँ पे आर्टरी जो है वो आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, वहाँ पे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा फील की जा सकती है। हार्ट बीट। A regular distant loop-tube sound can be heard near the chest. This sound is periodically produced by regular contraction and expansion of the heart. This periodic contraction and expansion of the heart is known as the heartbeat. हार्टबीट क्या होती है? हार्टबीट वो साउंड होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो लुप-डुप कहलाएगी और ये लुप-डुप जो है बेसिकली हार्टबीट होती है। यह आपको चेस्ट पे फील होगी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पे। कॉन्ट्रैक्शन पे और एक्सपेंशन पे ये 2 तरह की साउंड होंगी, एक कॉन्ट्रैक्शन की होगी और एक एक्सपेंशन की होगी। सो देयर इज 2 साउंड्स, लब एंड डब, और ये आपकी हार्ट बीट कहलाएंगी। The rate of the heartbeat varies from person to person. The heart beats on an average 72 to 75 times per minute. The heart beats faster in children and slower in old people. The heartbeat increases during exercise, exertion, and also when a person is excited. A newborn baby has a heartbeat of about 140 and a 3 years old about 100 beats per minute. Heartbeat and pulse rate are the same in an individual. अब जो आपकी हार्टबीट है वो हर बंदे में वेरी कर सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। एक बंदे से अगर आप दूसरे बंदे की हार्टबीट चेक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट भी मिल सकती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है? ये एज पे डिपेंड करती है, या आप उस वक्त अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो उस पर डिपेंड करती है। अब जैसे बच्चों में इन्होंने बताया कि बच्चों में जो आपकी हार्टबीट होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, जबकि बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें क्योंकि दिल उनका थोड़ा इतना नाजुक हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से धड़क नहीं पा रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो उनमें स्लो हो जाती है हार्टबीट। इसी तरह से जब एक्सरसाइज करेंगे या कोई टेंशन होती है, एक्सर्शन होती है, या किसी भी वजह से बंदा एक्साइटेड होगा तो उनकी हार्टबीट इंक्रीज़ हो जाती है। जो बिल्कुल पैदा हुए हुए न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी हार्टबीट होती है तकरीबन 140 और 3 साल की उम्र में तकरीबन 100 तक चली जाती है। जो हार्ट बीट और पल्स रेट होती है वो तकरीबन सेम होती है, ठीक है। हार्ट बीट, पल्स रेट जो है क्योंकि आपका हार्ट जो बीट करता है उसी का इम्पल्स होता है, तो आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट हमेशा सेम आएगी
और उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमें स्टार्ट में ही बता दी गई है, 72 to 75 टाइम्स पर मिनट. दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हार्ट बीट और वी कैन से पल्स रेट. Now we are studying nervous system. Nervous system consists of following organs: brain, here is the brain. Second is spinal cord, this is spinal cord. Third is nerves, and four are the sense organs which nerves are connected. First we are studying brain. What is brain? The brain is a delicate and the most important organ of the nervous system. It is situated in the head within a box known as brain box and is well protected by the skull. The brain controls and coordinates most human activities. ब्रेन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन होगा नर्वस सिस्टम का, और जिस कैविटी के अंदर वो होता है वो ब्रेन बॉक्स कहलाता है, और बोन का जो पार्ट उसे प्रोटेक्ट करता है वो है स्कल. और ब्रेन आपकी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको कंट्रोल करेगा और तकरीबन सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा. Second is spinal cord. It is a long tube-like structure and runs inside the vertebral column. The spinal cord is about 50 centimeter long. जो सेकेंड पार्ट है आपका नर्वस सिस्टम का वो स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होगा और वो पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा वो है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम जो है बेसिकली वो आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा. इसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर. थर्ड इज नर्व्स. Nerves carry messages in the form of impulses in the body. The pathway of an impulse is the nerve. An impulse travels at about 20 to 30 meters per second. The nerves are of two types, sensory nerves and motor nerves. अच्छा, nerves का इन्होंने बताया है. Nerves that transmit messages from the brain to various parts of the body are known as motor nerves. Nerves that carry information to the brain from the sensory organs are called sensory nerves. Nerves are distributed all over the body. 31 pair of spinal nerves arise from the spinal cord and 12 pairs of cranial nerves arise from the brain. Nerves का बेसिकली आपके काम क्या होता है? Nerves का बेसिक आपके पास काम होता है कि सिग्नल जो है वो स्किन से ब्रेन तक लेके जाएं और फिर ब्रेन से जो है सिग्नल वो स्किन तक या जो आपका सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ तक लेकर आएँ. अब हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो टाइप्स की नर्व्स होंगी. एक होंगी हमारे पास मोटर नर्व्स और एक होंगी हमारे पास सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स जो पहले मैं आपको बता देती हूँ. सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो आपके स्किन से लेके या जो आपका सेंस ऑर्गन्स होंगे, सेंस ऑर्गन से लेके आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके जाती हैं. ठीक है. और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आपकी वापस सेंस ऑर्गन्स तक लेके आती हैं सिग्नल या इम्पल्स, वो कहलाती हैं मोटर नर्व्स. तो बेसिकली सेंसरी नर्व्स होती हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो हम फील करते हैं वो ब्रेन तक लेके जाएंगी सिग्नल, और फिर ब्रेन हमें ऑर्डर देगा कि हमने किस तरह से उस पर रिएक्ट करना है. तो वो जो फंक्शन जाएगा हमारे वापस सेंस ऑर्गन्स तक, वो लेके आएंगी मोटर नर्व्स. अच्छा, अब नर्व्स भी हमारे पास दो इसकी डिविजन्स हैं. कुछ है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं डायरेक्टली, और वो है 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के. और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स के हमारे पास होते हैं 31 पेयर्स. देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. नाउ फोर्थ part is sensory organs. Man has the following 5 sensory organs for different senses. Nose is for smell, tongue is for taste, skin is for touch, eyes are for vision, and ears are for hearing. Nervous system helps in controlling and coordinating the working of all other organ systems of the human body. नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि वो बाकी जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं और जो बाकी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने में और उनको कोऑर्डिनेट करने में, उनके साथ राब्ता रखने में हेल्प करता है, ताकि सारे सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के वर्क कर सकें. नाउ वी आर स्टडीइंग एक्सक्रीटरी सिस्टम. The removal of waste materials produced in the body is termed as excretion. The organ system responsible for the elimination of waste materials from the body is called excretory system. This system consists of organs concerned with the process of getting rid of metabolic waste from the body. These waste are water, carbon dioxide, urea, salts and other compounds. हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो भी गैर ज़रूरी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको बॉडी से निकालने का जो काम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है. ठीक है.
जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो इन्होंने बताया, जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर है अगर बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया, सॉल्ट्स, ये सब चीज़ें कौन बाहर निकालेगा बॉडी से, वो सिस्टम कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर kidney, skin, lungs. The skin gets rid of water and salts through sweat glands. The lungs remove carbon dioxide during respiration, and kidneys excrete waste products in the form of urine. स्किन जो है आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स को रिमूव करेगी थ्रू स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स आपकी हेल्प करते हैं स्वेट प्रोड्यूस करने में। लंग्स जो है वो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वो करेंगे, रिमूव करेंगे थ्रू रिस्पायरेशन। और किडनीज जो है वो आपके जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। नाउ वी आर स्टडिंग यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन beings consist of the following organs: a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, urethra. These are kidneys. These are two kidneys, two ureter which are arising from kidneys, urinary bladder in which ureter open, and here is urethra from where the urine excretes out to our body. First we are studying kidneys. In our body there is a pair of kidneys located on either side of the vertebral column in the abdomen. Each kidney is brick red in color and bean shaped. As shown in the diagram, as each kidney is bean shaped and brick red in color. It weighs about 150 gram and is 12 centimeter in length, 6 centimeter in width and 3 centimeter in thickness. They help in excreting urine from the blood. Now what are the functions of kidney? They filter the waste from the blood as we discussed above. They help in the formation of urine. They help in eliminating harmful substances of the body. They regulate water and mineral balance in the body. तो इसके मेन फंक्शंस ये होते हैं कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक्सक्रीट करता है, और किस फॉर्म में करता है, यूरिन के फॉर्म में करता है। तो ये यूरिन प्रोड्यूस करना भी इसी किडनी का ही किडनी का ही फंक्शन होता है। इसके अलावा जो आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो भी ये एक्सक्रीट करेगी। और सेकेंड एंड लास्ट फंक्शन किडनी का होता है कि ये वाटर और मिनरल बैलेंस भी बॉडी का आपके रेगुलेट करेगी। यूरिटर्स, the ureters are two thin-walled urine-carrying ducts. They originate from each kidney and are about 30 centimeter in length. They run downward and open into the urinary bladder. Here we can show two ureters arising from each kidney, and they are long tube-like structures which open into the urinary bladder. Now, what is urinary bladder? It is a bag-like structure in which urine is stored. Its size and position vary with the amount of urine it contains. अगर ब्लेडर के अंदर आपके पास ज़्यादा यूरिन होगा तो ये थोड़ा सा अबव आ जाता है, ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा एब्डोमेन में, और अगर कम होगा तो ये एब्डोमेन में नीचे पेल्विस की जगह पे ही रहेगा, नीचे इनर साइड ऑफ द एब्डोमेन में रहेगा। यूरीथ्रा, द यूरीथ्रा इज द डक्ट which carries urine from the urinary bladder to outside the body. Here the urethra is shown. It carries urine outside the body from the urinary bladder. Now what is urine? Urine is a yellow colored liquid. It contains 96% of water, 22.5% urea, 1.5% mineral salts and compounds of sodium and potassium. A human being excretes an average of 1.5 to 2.5 liters. Now see page number 18. We are starting new topic, that is reproductive system. All living things reproduce to maintain the continuity of the species. The reproductive organs in male and female differ in size as well as in function. In the male it consists of a pair of testes, and in female a pair of ovary. Testes produce sperms while ovaries produce ova or eggs. The sperm fuses with the egg to form a new embryo which develops into a baby. Reproductive system क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ताकि हम अपनी स्पीशीज़ को, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकें, कंटिन्यू कर सकें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल और फीमेल के होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कहलाएंगे टेस्टिस, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको कहेंगे ओवरीज। जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे और ओवरीज प्रोड्यूस ओवा या एग्स।
ठीक है। और फिर ये स्पर्म्स और ओवा जो मिलके फ्यूज़ होके जो न्यू सेल बनाएंगे वो कहलाएगा एम्ब्रियो, और फिर ये एम्ब्रियो ही है जो आगे जाके ग्रो करेगा बेबी में। दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी आर स्टडिंग मस्कुलर सिस्टम. This system is composed of different types of muscles. It is responsible for all types of movements of the body and its internal organs. It also supports the body. मस्कुलर सिस्टम, आपको पता है कि मसल्स होते हैं मस्कुलर सिस्टम में, और ये मसल्स जो आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं वो मूवमेंट में काम आएंगे, ठीक है। मसल्स आपके मूवमेंट में और आपके बॉडी को सपोर्ट करने में मेन फंक्शन इनका होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम. This system consists of 206 bones of skull, backbone, ribs and limbs. This is skull. This is backbone. These are ribs, and these are 2 upper limbs and 2 lower limbs. All the bones together form 206 bones of skeletal system. The main function of this system is to support the body and to protect the internal vital organs like the brain, the heart and the lungs. It also helps in movement and in making the body rigid. जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है आपके वाइटल ऑर्गन्स का, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे आपके हार्ट हैं, लंग्स हैं, और जो आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गन होता है ब्रेन, उसको सपोर्ट करेगा। स्कल आपका ब्रेन को सपोर्ट करेगा, और जो आपके ये रिब्स हैं ये हार्ट को और लंग्स को सपोर्ट करेंगे। और मूवमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि जो आपके बोथ लिम्स हैं वो आपकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नाउ वी आर स्टडिंग इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. This system consists of the structures which cover the body externally. Can you name 3 such structures that are skin, nails and hair constitute the integumentary system? The skin protects the body. It also possesses sweat glands and sensory cells. Integumentary system protects the body from harmful microorganisms. It prevents water loss from the body. Integumentary system body का बहुत important system होता है। वो आपको एक्सटर्नल जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके बर्न्स हो गए या आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उन सब चीज़ों से स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 मेन जो इसके ऑर्गन्स होते हैं वो होगा स्किन, नेल्स एंड हेयर। आपकी बॉडी पे ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बेसिकली एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जो आपके बाहर एनवायरमेंटल जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अंदर आपके पास स्किन में स्वेट ग्लैंड्स और सेंसरी सेल्स भी होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स आपके स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और सेंसरी सेल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। नाउ वी आर स्टडिंग एंडोक्राइन सिस्टम. द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 डक्टलेस ग्लैंड्स which secrete hormones. Hormones are chemical compounds responsible for bringing about control and coordination between various functions of the body. Endocrine system में आपके वो glands आते हैं जो ductless होते हैं. These are ductless glands, ठीक है। इनकी ducts नहीं होती हैं और ये डायरेक्ट अपनी secretion blood में सेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 7 आपको शो कर रहे हैं एंडोक्राइन ऑर्गन्स. फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशन ब्लड में सेंड करेगा. थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड. रिमेंबर दीज आर ग्लैंड्स, दीज आर नॉट ऑर्गन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड. फोर्थ इज पेनक्रियाज, देन एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टीज. All are these 7 are endocrine glands which secrete their secretions directly into the blood. They don't have any duct. ये आपके क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये आपका जो है जो डिफरेंट फंक्शंस होंगे बॉडी के उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करेंगे। आपके जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको काम करने में बेसिकली आसानी पैदा करते हैं, कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको ईजीली उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। Now this is the sum up of this chapter, organ system of our body. The sum up of this chapter is there is a group of tissues performing a specific function. These are called organ. Organ is basically a group of tissues which is performing a specific function. And a group of organs and tissues constitute an organ system. All organs and organ system in the body have their own specific functions to perform. All organ system work in coordination with one another. Endocrine and nervous systems are 2 important coordinating systems of our body.
इसकी समरी ये है हमारे पास कि जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होंगे जो कि एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो आपका ऑर्गन कहलाएगा। और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे या ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होंगे वो मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है बॉडी के, वो आपके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब एक ख़ास ऑर्गन है, वो आपका वो एक ही काम परफॉर्म करेगा। ये नहीं कि एक ऑर्गन जो है वो अलग अलग काम परफॉर्म करे, ऐसे नहीं होता। ठीक है। इसी तरह से जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सारे आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के कोड को साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प में काम करते हैं। और जो मेन जो आपके इसकी एग्जाम्पल जो देते हैं, दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स जो आपके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, वो है आपके पास एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, सी पेज नंबर 20, एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। द बकल कैविटी कंटेन्स डैश एंड डैश. The buccal cavity contains tongue and teeth and salivary glands. We should breathe through dash. We should breathe through lungs. Dash and dash are organs of nervous system. Brain and spinal cord are organs of nervous system. The blood is carried to all the organs of the body by dash. The blood is carried to all the organs of the body by arteries. The skeletal system protects dash and dash. The skeletal system protects brain and heart. The blood transports dash and dash. The blood transports oxygen and food material. The dash system produces hormones. The endocrine system produces hormones. Dash and dash are meant for grinding food. Jaws and teeth are meant for grinding food. Dash and dash are the two upper chambers of the human heart. Right atrium and left atrium are the two upper chambers of human heart. The normal heartbeats of an adult is 70 dash times per minute. The normal heartbeats of an adult is 72 to 75 times per minute. Now see page number 21, exercise C, true and false. Kidneys are the only excretory organs in men. That is false, because there are also skin and lungs which are the excretory organs in men. All organs have more than one function. That is false. I told you that all organs have only one specific function or specific organ. ठीक है. Blood is a part of the transport system. True. The heart is situated on the left side of the chest region. True. We have 12 molars in our mouth. This is false, because we have only 8 molars in our mouth. Testes are the female reproductive organs. False, because testes are male reproductive organs and female reproductive organs are called ovaries. Blood in veins flow with more force than in artery. This is false, because arteries जो हैं उनके अंदर blood ज़्यादा force से flow होता है as compared to veins. So this is false. Nervous system consists of brain and spinal cord. True. Saliva is stored in the gallbladder. This is false, because saliva is stored in salivary glands. Hair, nails and sweat glands are sensory organs. This is false, because hair, nails and sweat glands are integumentary organs, not sensory organs. Now we are doing exercise number D, strike off the odd term out of the following. Intestine, stomach, gallbladder, kidney. Here kidney is the odd one. Saliva, pancreatic juice, bile juice, blood. Blood is the odd one. Heart, veins, ureter, capillaries. Ureter is the odd one. Kidneys, spinal cord, ureter, urethra. Spinal cord is the odd one. Nostril, mouth, larynx, trachea. Mouth is the odd one. अच्छा, अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऑड वन क्यों है. यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्टमक और गॉल ब्लैडर जो हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए किडनी ऑड वन है. सलाइवा, पेंट्रियाटिक जूस और बाइल जूस भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ब्लड ऑड वन है. हार्ट, वेन और कैपिलरीज आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. यूरिटर जो है वो ऑड वन है. किडनीज, यूरिटर एंड यूरिथ्रा आर द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज़ द यूरिनरी सिस्टम. स्पाइनल कॉर्ड आपका ऑड वन है. नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स और ट्रैकिया आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है. माउथ ऑड वन है.
नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर ई, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करते हैं, जो सिस्टम है उनका जो फंक्शन है उससे मैच करना है इसको, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स फंक्शन इज मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ फूड एंड हॉर्मोन्स। सेकेंड इज स्केलेटल सिस्टम, इट्स फंक्शन इज सपोर्ट्स द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, its function is removal of waste materials. Respiratory system, its function is exchange of gases. And endocrine system, its function is production of hormones. Now this is the end of this chapter. You have to write it down in your science journal. अभी तो जो है मैंने आपको टाइम की शॉर्टेज की वजह से और रिकॉर्डेड लेक्चर की वजह से इसके आंसर्स भी साथ साथ बता दिए हैं, लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आपको लेसन ख़ुद से अच्छी तरह से पढ़ना है, लेक्चर को सुनना है, और जो इसके एक्सरसाइजेज़ हैं उनकी ख़ुद आपको वो सॉल्व करनी है, उनके आंसर्स आपको ख़ुद सॉर्ट आउट करने हैं। थैंक यू।